بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین وعلی الطیبین الطاہرین المنتجبین المعصومین صلوات یہاں کی اس دور کی پہلی مجلس آپ کسان بغیر تمید دیکھیں گے وقت زیادہ ہو گیا ہے اور اسی منواڑے سے میرا خاص تعلق ہے. میں کچھ 40 سال کے کسی منواڑے میں اور میرے دادا صاحب کی آج کی سانس اسی منواڑے میں. اس لیے میں ہو سکتا ہے فزیکل طور سے آپ کے لیے اجنبی ہوں لیکن روحانی طور سے اجنبی اور یہ مجلس حسین ہے. دنیا میں ہر رشتہ اجنبی ہو سکتا ہے وقت کے لحاظ سے. عزاداروں کا رشتہ اجنبی نہیں ہو. کہیں کا بھی آدمی ہو کسی ملک کا بھی ہو اگر ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ عزادار ہے ہم ایسے ملتے ہیں جیسے سگے بھائی سگے. لیکن اگر سگا بھائی بھی عزادار نہیں ہے تو اس سے ہم غیر ہو جائیں کیونکہ ہماری بنیاد ہم کو دنیا ختم نہیں کر سکتی کیونکہ ہم سیدہ کی خواہش ہیں. عزاداری بھی ختم نہیں ہو سکتی کیونکہ عزاداری بھی سیدہ کی خواہش ہے. اور رہے کیونکہ پہلی مجلس سے یہ ہماری آپ کی گفتگو جاری رہے گی. کچھ تھوڑا تھوڑا آپ کی مجھے پہچان دیں گے میں بھی آپ کو پہچان دوں لیکن ایک لفظ علی جس میں انٹروڈکشن کی ضرورت نہیں پڑتی. نہ علی کو نہ علی والے کو. یہاں میں نے کہا علی وہاں آپ مسکرائے تو بھائی ہو گئے. اور اس بنیاد پہ بھائی ہو گئے کہ آپ مسکرائے. ہم نے آپ نے اپنی خاندان کی پاکیزگی کی پہچان دے دی. ہم نے بیان کر کے اپنے خاندان کا انٹروڈکشن دے دیا. اکثر لوگ مخالفت کر دیتے ہیں. لوگ بولتے ہیں آ کے بھائی کسی بھائی انہوں نے یہ پڑھ دیا تھا تعلیم کے بارے میں انہوں نے کہا فضائل نہ پڑھا کرو انہوں نے کہا زیادہ زیادہ حیدری نہ بولا کرو. میں کبھی گھبراتا نہیں جواب نہیں دیتا اس سے. کبھی بھی نہ گھبرائیے گا. کوئی فضائل کے خلاف بولے یا کوئی عزاداری کے خلاف نہ گھبرائیے گا. لیکن اگر سن رہے ہیں تو ہاتھ بلند کر کے اپنی والدہ کو دعا کیجیے گا یہ کہہ کے کہ یہ ماں تم نے مجھے وہ نہیں کھلایا جو اس نے کھلایا. مل جل کے اسے نہیں لگے. اور ایک ہی لوگ کہتے ہیں جھگڑا بڑھنے سے ہی شروع کرنا کہ بھائی یہ اصل میں آپ نے کہا اس کی اختلاف ہو گیا. آپ بھی محمد رسول اللہ پہ رہتے تو پورا اتحاد رہتا ہے. آبجیکشن ایک دعویٰ ہے کہ محمد رسول اللہ کہتے تو سب ایک ہو گئے. آپ علی اللہ کہتے اس لیے الگ ہو گئے ہے نا. سب کا 71 فرقے سب کا لایا محمد رسول اللہ ہے. یہ نہیں آپ علی اللہ کہتے ہیں اس لیے الگ ہے. اور جب سے آپ نے علی اللہ کہنا شروع کیا ہے تب سے ہی دو فرقے بنے گے ہے نا. یہ صحیح ہے. یہ الزام صحیح ہے. ایبسولوٹلی ناٹ. یہ الزام غلط ہے کیونکہ علی اللہ کے وجہ سے دو فرقے نہیں ہوئے ہیں. وہ علی ہی نہیں جو دین کو جدا کرے. یہ بھائی یہ حدیث ہے. یہ حدیث ہے جناب سیدہ کی. ہماری محبت بنائی اس لیے گئی ہے کہ تم متحد رہو. یہ حدیث ہے جناب سیدہ کی. ہماری محبت تم پہ واجب اس لیے کی گئی ہے کہ تم متحد رہو. علی اللہ سے دو فرقے نہیں بنے ہیں. اگر علی اللہ سے دو فرقے بنے ہوتے تو یہ اکہتر کس کو بنے کنی دو فرقے بنے کب سے. یہ دو فرقے اس وقت بنے جب ہمارا رسول امام حسن کے ساتھ ان کا بھی ذکر ضروری ہے واجب کیونکہ دونوں کی شہادت ہے. امام رسول اللہ کی شہادت بھی ہے امام معصوم کے ساتھ ولادت بھی ہے معصوم کے ساتھ. ہم سے پوچھے مسلمان رسول کیا ہے ہم بتاتے ہیں ہم پڑھتے رسول
इस जमाने का मीडिया और माफिया एक केयरफुल रहिएगा। दो फिरके अल्लाह की वजह से नहीं हुए, दो फिरके उस वक्त हुए थे दुनिया में इस्लाम के बाद, जब रसूल अपनी आखिरी सांसें जमीन पे ले रहे थे, जब बिस्तर पे लेटे हुए थे, उसी वक्त दो फिरके हुए थे। कौन से फिरके? एक कहलाता कलम दो, एक कहलाता कलम ना दो। और जिसने कहा था कलम ना दो वही टेररिस्ट है। किताब आप तलाश कीजिएगा कि किसने कहा था कलम ना दो। वही से हुए ना भाई। कुछ चाहने वाले कहते दे दो, कुछ चाहने वाले कहते ना दो। मुसीबत क्या हुई कि ये इसलिए ना दो कि रसूल दीन नहीं जानते। नाउज़ुबिल्लाह। ये जो है अस्तगफिरुल्लाह, और इसमें कोई नहीं, शिबली नोमानी ने लिखा है कि उनकी इस हरकत से इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि वो कठोर थे। ये लफ्ज़ लिखा है किताब में मुसलमानों में कि उनकी हरकत से ये डाउट नहीं किया जा सकता कि ना किया वो कट्टर दिन थे और पाकीज़ा मोमिन के पहचान है। सब हो सकता है, कट्टर दिन नहीं हो सकता। वो उनका कलम तो लिखा है। तो दो फिरके बने, एक कह रहा कलम दो, एक कह रहा कलम ना दो। अब उसके बाद से बोलो पहला टेररिस्ट इस्लाम का किसने कहा? मैं अक्सर बताना चाहता हूँ भाई, अगर आपको लिखना पढ़ना ना भी आए तब भी कलम रखिए। ये एजुकेशन ऑफ बिजनेस है, कलम रखिए। इसलिए इल्म वाले के लिए जरूरी नहीं कि वो रखे, कोई मांगे तो फट से दीजिए, तबर्रा ये मौजूदा है, अदब डाला कौन है? मेरे खून में है। इतनी आदत है याद करने की कि हम दूसरा गिरे काफिर तो मेरे मुंह से नहीं बता। दूसरा आगे भाई गैर मुस्लिम ये रहा हो बच्चा, एक सवाल है गैर हमारे मुस्लिम क्या तो वो समझ नहीं आता है। तो सवाल क्वेश्चन नंबर 1 पहला सवाल कि अली तो नजासत से दूर है, काफिर की मदद कैसे की?
कुछ लोगों को शायद शॉक लगा इस बात से, इमाम ने तो ये किया था, आप ये किए जा रहे हैं। इमाम ने तो जंजीर नहीं किया था, आप किए जा रहे हैं। इमाम ने आप इनकी मजलिस को पहचानेंगे, आप इनके गुण को पहचानेंगे। अल्लाह ने जिनको अपने पहचान के लिए बनाया हो, जो आवाम की बात सुन के पढ़ो। ये कह के बैठता हूँ, बीबी अपनी मर्जी से आया हूँ, आपकी मर्जी से उठूंगा। जाकिर के हाथ में नहीं होता, जाकिर के हाथ में नहीं होता कि वो अपनी मर्जी से पढ़ दे। ये ज़ैनब का एक वाहिद दरसगाह है जहाँ बैठने वाला पढ़ता है, नीचे बैठने वाले पढ़वाते हैं। पहचान मौलाना सिर्फ उनकी जिंदगी को देख के उनकी बातों पे अमल कीजिए बस। क्योंकि ऐसा ना होता तो रसूल कहते कि मेरे और अल्लाह के अलावा नहीं कोई जानता नहीं, कहते और अल्लाह को मेरे और अल्लाह के अलावा नहीं जानता, मुझे अल्लाह और अल्लाह के अलावा नहीं जानता, ये बात कहते हैं। तो आप पहचानने की कोशिश करें, बहुत पहचानिएगा तो मुझसे भी नहीं। बहुत समझा खुदा समझा, कम समझा मौला समझा, मीडियम समझा इमाम समझा। तो या आगे बढ़ गया या पीछे रह गया, एक दरमियान में रहना। इसीलिए रसूल ने कहा था नबी में, जो आगे बढ़ गए पीछे आए, जो पीछे रह गए उनका इंतजार करो, बीच में रहो। आप मौला से समझना, मौला की बात है पर भटक जाएगा आदमी। क्या सोचेगा आदमी, ये खुतबा पढ़ता है तो आदमी पागल हो जाता है। उलमा ने कहा है कुछ खुतबे ना पढ़ो मौला के, लोगों के लिए जब तक आलिम ना हो साथ में। ये खुतबा कहां से कहां दिमाग में नहीं चला जाता। मौला तो समझेंगे, मौला समझना बहुत मुश्किल के रसूल ने कह दिया तो नहीं, उनकी बातों पे अमल कीजिए। ये बात कहा है, इस पे अमल कीजिए। एक नौजवान आया, उसकी शादी दूसरे दिन मौला के पास आया सादे लिबास में। ये उन नौजवानों के लिए जो नेगेटिव सोचते हैं, मौला तो सादा रहते थे, हम भी सादा रहे। मौला तो प्लेन ड्रेस रहते थे, हम भी प्लेन ड्रेस रहेंगे। मौला तो पेमेंट वाला रहते थे, हम भी पहनेंगे। वो मौला हो ही नहीं सकता जो चाहने वाले को नेगेटिव करे। वो मौला हो ही नहीं सकता जो आदमी को नेगेटिव करे। हम अगर बड़े टाइकून है बिजनेस के और हमारा बेटा हवाई चप्पल, फटी हुई चप्पल और कॉटन का पैजामा, पैबंदार कुर्ता, दाढ़ी बढ़ी हुई रास्ते से गुजरे, तो हम क्या कहेंगे, ये बेटा ऐसे जगह से मत जाओ, तुम्हारा बाप बहुत बड़े आदमी है, हमारी बेइज्जती हो जाएगी। तो मौला क्या चाहते, उसका करने वाला कैसा है। अभी मैंने पढ़ा कुरान की एक मुफलिसी की तारीफ नहीं दिखा सकते, बल्कि ये मौला का जुमला है कि शरीयत मेरी होती तो सबसे पहले मैं मुफलिसी का करार खोल देता। लोग शॉक हो जाते हैं, कहीं नहीं है नेगेटिविटी का। ये यहूदियों की चाल थी, उनका एनकरेजमेंट था कि गुर्बत की तारीफ करो, गरीबी में ईमान है, झोपड़ी में ईमान है, ताकि कौम वहीं रहे। बैंकिंग भी बताऊंगा, फाइनेंस में हमारी आपकी गुफ्तगू होगी। मौला को चाहिए, मौला की बातों पे
देखिए और अमल कीजिए, क्योंकि मौला की बातों पर अमल करने का नाम ही तो सिरात मुस्तकीम है। जो 17 बार वो मुसलमान कह रहा है इहदिना सिरातल मुस्तकीम, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हम लोग भी कह रहे हैं कि सीधे रास्ते पर चला, सीधे रास्ते पर चला। हमारा रास्ता तो बता रहे हो, मंजिल तो बताओ कहाँ पहुंचेंगे, वो नहीं बताता। वो रास्ता बेकार है, जहाँ मंजिल ना मालूम हो, सिरातल मुस्तकीम को तो पहचानो, है ना। हम और आप क्या बड़े बड़े उस जमाने के जब रसूल के बगल में बैठे हुए थे, जब ये आयत आई सिरातल मुस्तकीम और इमाम मुबीन, कुरान उठा के देखिएगा फरमानी साहब का, तो दोनों बैठे हुए थे बगल में और इतने बार पूछा या रसूलल्लाह ये इमाम मुबीन क्या है, ये इमाम मुबीन क्या है। हमने तो पैगंबर सुना था, ये इमाम मुबीन क्या है। इतना चीख चीख के इतने बार पूछा, फरमानी साहब ने कहा कि रसूल खुदा की पेशानी से पसीना आने लगा उससे, और जवाब नहीं दे रहे थे, बस देखते थे। दोनों चीख चीख के खड़े हो गए, या हुजूर बताइए कि क्या है इमाम मुबीन, क्या है, क्या है इमाम मुबीन। पूछते गए जब खड़े हुए तो रसूल खुदा भी खड़े हुए, झूठा निकाय। जैसे ही रसूल खड़े हुए, रसूल के आंगन का दरवाजा खुला, एक खूबसूरत सा नौजवान बोला है कि तुमसे कहा क्या हुए झूठा हुआ चला है। रसूल ने दोनों को देखा, बच्चा सा देख के कहा पूछ रहे थे ना, आधा चला तो बसता नहीं, आधा चला तो बसता नहीं, आधा चला तो बसता नहीं। देख बता रसूलल्लाह, ये आप एक बार कह देते आधा चला तो मुस्तकीम तो बात खत्म हो गई थी। ये तीन बार क्यों कहा आधा चला तो मुस्तकीम, आधा चला तो मुस्तकीम, आधा चला तो मुस्तकीम। तो रसूल के जवाब आगे तो नहीं आते, इनका हाफजा बहुत कमजोर है, मैं हाफजा की आदत डाल रहा हूं। मैं इनको डाल रहा हूं हाफजा की आदत। जब मैं कहूं मन तन तमाम फहाजा, तुम्हें समझ में आ जाए, ट्रेनिंग दे रहे थे। गदी नहीं करना मुझे, गदी से नहीं, मौला के फज़ाइल मौला को समझना। आपने गौर किया होगा मुसलमानों की किताब में लिखा, मस्जिद नबवी के बाहर एक चबूतरा था, काहे के लिए था, खासकर मुसाफिरों के, कि आए वहां बैठ जाए। कलकत्ता तो मुझे पता नहीं, खुदा मस्जिद के बाहर के चबूतरों से कौन को बचाए। आए देखा आदमी बैठा हुआ, जो भी आता था रसूलल्लाह क्या करते थे, मेहमान है अली ले जाओ, ये ना, ये मुसलमान किताब, कोई किताब नहीं तो सुबह डायरेक्ट लेंगे, अली इसको ले जाओ खाना खिलाओ। क्या बनाना चाहते थे रसूल, मिलने आता था रसूल से ना, अली के घर क्यों खाना खाने बैठते, कहते थे कलमा पढ़ने के बाद भी अगर अली को हटा के मेरे पास आए तो भूखा रह जाएगा। आज जो मुसलमान खाने का भूखा नहीं, इल्म का भूखा, अखलाक का भूखा, किताब का भूखा, एक अली के दरवाजे पे आ जाता, सारी भूख खत्म हो जाती। या रसूलल्लाह ये वहाबी क्यों बन गए, मैंने अली को छोड़ा, फिर रसूल को छोड़ा, फिर अल्लाह को छोड़ा। तो अली को छोड़ने का नतीजा वहाबियत है। क्या तो क्या कलाम है, समझो तो। हम लाउड स्पीकर से बोल रहे हैं, आइए हम दावत आम दे रहे हैं, इमाम बाड़ा है, लाउड स्पीकर लगा है। इख्तिलाफ का नाम अली नहीं है, इत्तेहाद का नाम अली है। क्योंकि जब रसूल की हदीस है ये अली, जन्नत और जहन्नम अल्लाह ना बनाता अगर तुमको कल्पना करो, कंप्यूटर जीरो होता। बात पे तो आया, कालिस को ले जाओ, वो बेचारा 2 कदम हो गया, तो मौला ने कहा चल चल के घबरा कर चलो, तो रास्ते में नहीं, आप दरे खैबर अपने उखाड़ा हमने देखा, लेकिन दरे खैबर उखाड़ने वाला अगर जामुनों के जोर से रोटी तोड़ता है, क्या मैं खा सकता हूँ? चल
दस्तरखान बिछाया, थोड़ा सा दस्तरखान बिछाया, बिस्मिल्लाह, सोचा उसने, मगर खाते रहे, आप भी करते रहे, जब तक मौला ने एक रोटी खाई, नईमुल अबरार किताब है, नहजुल असरार, नहजुल असरार, जब तक वो एक रोटी खाता, मौला एक रोटी खाते जब तक वो 3 रोटी खा लिया। मौला ने गौर से देखा, जब खाना खत्म हो गया, कभी क्यों तो कह रहा था रोटी बहुत सख्त है, तो 3 खाएगा माशाअल्लाह, मैंने 1 खाया, मैंने मौला ने 3 रोटी खा गया, मुझे खबर नहीं, कहा कैसे खा गया तू बोल। तो बोला पहली जब रोटी खाई जरा सख्त लगी, सख्त लगा चबाने, दूसरी खाई तो लग रहा था कि हल्का हो, तीसरी खाई तो लग रहा था शरबत होता, मौला ने खड़ा हो गया, क्या लगा, पहली रोटी सख्त थी, दूसरी जरा ना, तीसरी लगा खड़ा, निपटाया। तो मौला रोटी से निपटा नहीं सकता, तो मेरा चाहने वाला है, मुझे समझ गया। आपके समझने से मोहब्बत से रोटी से क्या ताल्लुक है? क्या यही रोटी का जो किरदार है, यही मेरी मोहब्बत का किरदार है? शुरू में ऐसा लगता है, आगे बढ़ता है, मोहब्बत के फूलों को जाता है, सलाम मेरी मोहब्बत है। ऐसे कोई बात नहीं होगा ना। शैतान एक शैतान का पाप, शैतान नमाज से रोकता है कि मत पढ़, वजू मत कर। शैतान का पाप कहता है पढ़, मुंह मोड़ दूंगा। दूसरों में तवाफ़ निसा नहीं, जब तक तवाफ़ निसा न करे हज के बाद बीच में, तब तक बीवी हलाल नहीं होती। जब तक तवाफ़ निसा न करे बीवी हलाल नहीं होती। इतने शराइत हैं उसके कि भूल गए तो दूसरे को भेजिए गवाह। खलीफे दो पहले वाले तक था, मुसलमानों की किताब पहले वाले तक था, दूसरा वाला समझ गया कि जब तक हलाली पैदा होते रहेंगे हम उनको नहीं रोक पाएंगे नहीं मोहब्बत से। इसीलिए जब कोई मेरे पास आता है
پوچھنے کے لیے کہ توسی بھائی ہم ذرا آپ کے مذہب کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، ہم کو پسند آئے گا، بہت اچھی بات ہے۔ تو ہم پہلا سوال یہ کرتے ہیں کہ آپ ابا کی حد سے پہلے پیدا ہوئی یا بعد میں؟ کتاب رکھ کے بات کرتی، کتاب کو نہ مانے، غلط بات۔ کیونکہ اگر آج کل کیا ہے، باپ سے پیدا ہوئی تو بیوی تو حرام تھی۔ اب جو اولاد ہوگی وہ مکہ کی ہوئی نہیں۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ مطالعہ کا یہ بھی لکھا ہے کتاب صحیح بخاری میں ہے کہ پہلی خلافت کا خراب روکا گیا، کیوں؟ کیونکہ آدمی حلال نہ کر پائے۔ کیونکہ علی کے چاہنے والے نے پیدا روکا تو مناسب کرے گا۔ علم ہے، کوئی بھی ہو حلال ہے پڑھنے والا، ایسے نہیں ہے جو ہم لوگ مدرسے میں پہلی کتاب پڑھ جاتے ہیں، اس میں واقعہ ہے کہ حلالی اور غیر حلالی ہر انسان میں نہیں ہے۔ دیکھیے ہر انسان میں نہیں ہے، جانوروں میں بھی ہے۔ شوق تو کیا حدیثیں ہمارے مدرسے میں علماء کو پڑھائی جاتی ہے کتاب، مدرسے کا نہیں، اس میں کہ کوفے میں فرات میں سیلاب آنے لگا، کوفے کے گھر ڈوبنے لگے، لوگ پریشان ہو کے مولا کے پاس آئے۔ جب آئے تو کہا مولا ہو سکتا ہے ہمارے گھر سب ڈوب جائیں، ہم مر جائیں، بچائیے، تفصیل نہیں پڑھوں گا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا فرات ہے اس میں آنسو۔ کہا لے کے چلو، دیکھ اشارہ کیا، کیا ہو گیا کچھ رہتی کیوں نہیں؟ فرات کا پانی زمین نے جذب کیا، اتنا جذب کیا کہ مچھلیاں نظر آنے لگی، اتنا جذب کیا کہ کورس کی کتاب ہے، مچھلیاں نظر آنے لگی۔ مچھلیوں نے سر اٹھا کے کہا السلام علیکم